Hello everyone, welcome to Mala's Food and Travel blog and we are welcoming you to our Europe series where आप second video में आप सब ने देखा होगा कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड से that is इंटरलाकेन से हम लोग वियना की तरफ निकल पड़े हैं. So now we are going to Zurich and then Zurich we would be going to Vienna. And as all of you know that Vienna is such a beautiful city, ये capital city है and the most populous city in Austria which is based on Danube River and it is known for its art, culture. So Vienna have had the tradition including theatre, opera, classical music and fine arts. First look outside the window. It is scenic and beautiful. जन्नत है. So Zurich से वियना HBF आने तक का सफ़र हम लोगों का 7 घंटे 12 मिनट के बाद हम लोग अब आ चुके हैं वियना शहर में, जैसे कि आप देख सकते हैं. So अभी रात के 9 बजे हैं. अभी हम लोग ये ऊबर टैक्सी से अपने अपार्टमेंट में जाने वाले हैं, Airbnb अपार्टमेंट. So this is our first morning in Vienna and we are headed towards the first city tour. So let's go. And देखिए अब हम आ गए हैं वियना शहर के बहुत ही फेमस जगह पे जिसका नाम है रिंगस्ट्रासे और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स हैं. हमारे लेफ़्ट पे वियना का ओपेरा हाउस है जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट है, बहुत ही अच्छा है शॉपिंग के लिए. सो अभी हम तो यहाँ से हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे ज़ारा होम पे जाके टूरिस्टी वाला फीलिंग लेंगे एंड वहाँ पे वियना बिग बस टाइप का टूरिस्टी बस होता है जहाँ से हम लोग पूरे सिटी को एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गो. और बिग बस टूर. सो अभी इस बस के ऊपर जाके बैठेंगे सीट्स पे जो भी अवेलेबल मिलता है. Wow, we luckily got the top front seats. Going to do the city tour. Namaste. Namaste. We'll join on the camera. Hi, Instagram. Hello. Instagram, YouTube, all possible social media. Thank you. So, let's talk about Vienna. Vienna is popularly known as the city of music because of its musical legacy, thanks to Beethoven, Mozart and Mahler and so on. आज तो बहुत अच्छा ही मौसम है यहाँ पे. राउंड अबाउट 9-10 डिग्रीज़ हैं बाहर एंड आप लोग को बता दें कि वियना इज़ द लार्जेस्ट जर्मन स्पीकिंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड. वो वन ऑफ द लार्जेस्ट. ये देखिए, ये है वियना का स्टेट ओपेरा हाउस. तो इस ओपेरा हाउस को बनने में ऑलमोस्ट 8 साल लगे and this was being inaugurated by the Emperor Franz Joseph and उनकी वाइफ एलिजाबेथ. आपको ऑस्ट्रिया में एंड वियना में स्पेशली बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स मिल जाएंगे which has been inaugurated by the emperor and his wife. So this area is popularly known as Ringstrasse जहाँ पे बहुत ही important and beautiful monuments बनाए गए हैं. ये है Academy of Fine Arts. इसके notable alumni के लिस्ट में various famous painters
architects, visual artists, sculptors and professors रह चुके हैं. And in fiction, by the way, in fiction totally, 2001 में एक किताब आई थी, एक नोवेल आया था, namely Alternative History. So, as per that novel, the alternative hypothesis कहा जाता है कि अगर अडोल्फ हिटलर, यंग अडोल्फ हिटलर का एक्सेप्टेंस या एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो जाता तो आज वो जाने माने पेंटर के नाम से पहचाने जाते दुनिया में, ना कि पॉलिटिक्स में एंटर करते और डिक्टेटर बनते नाजी जर्मनी के. सो ये फिक्शनल है, पता नहीं कितना सच है इसमें. By the way, दर्शकों, apart from famous musicians like Beethoven, Mozart and Mahler, बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट रह चुके हैं. माना जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड भी वियना से थे. And this is Austrian Parliament building. It is being created by Theophil Hansen. He was the architect. It contains over hundreds rooms. So, most prominent of which are the chambers of the National Council, the Federal Council and the former House of Deputies. यहाँ पे swearing in ceremonies होती हैं Austrian Parliament में of Austrian presidents. ये है Palais Sachet von Comrela. I hope I pronounced it right. एंड इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में है वियना की क्रिसमस मार्केट, द वीन क्रिसमस मार्केट. एंड दिस इज व्हाट यू सी इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. वाओ, जस्ट लुक एट द आर्किटेक्ट. नाउ द चर्च दैट यू सी इज द वोटिव किर्चे चर्च. It is a very famous church in Vienna. The origin of this church derives from a failed assassination attempt on Emperor Franz Joseph by Hungarian nationalist Janos in 1853. So ये dedicate किया गया था ये church 1879 पे on the silver anniversary of the emperor and his wife. Beautiful architecture indeed. We come. This is the Museum of Applied Arts, Vienna. This is Danube River Canal. So Danube River is also known as the second longest river in Europe. And this is Urania, which is a public educational institute and observatory in Vienna. Just bang opposite to it is Unica Tower, which is Unica Insurance Group's building. Shape of the building Unica इसलिए कहा जाता है because it is Q-shaped. अभी ध्यान से सुनिएगा बेल की आवाज़ चर्च की. Adira, say hi. Hi. अरे बाप रे, ऐसा अगर हाय है तो बाय कैसे है? Very true. So this is Webster University, Vienna. And this is the famous statue of Tegethoff.
Giant Ferris wheel that you see right now on your screen is one of the most popular tourist attractions in Vienna. ये 64.75 meters high है, which means 1212 feet tall. So ये आपको Prater Amusement Park में मिलेगा. इसके साथ बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें भी इस पार्क में मिलेंगी आपको. देखिए एक प्यारी सी चीज़, पिग शेप्ड ATM है ना, बहुत ही प्यारी है. सो ये है वियना डैन्यूब क्रूजिंग प्लेस. यहाँ पे आप लोग ट्रिप एडवाइज़र, DDSG, BlueDanube.com, Viator और Booking.com में जाकर अपने क्रूजिंग या कि कोई भी बोटिंग एक्टिविटीज़ आप बुक कर सकते हैं. This is the Vienna International Center. Wow, this is a riverside spectacular view. ये है OBB रेलवे स्टेशन और हम लोग आ गए हैं रिंग्सट्रासे ज़ारा होम के पास, जहाँ से हम लोगों ने वियना बिग बस सफ़र स्टार्ट किया था. वैसे सच बताएं तो काफ़ी भूख लगी है, सो लेट्स गो एंड हैव सम लंच. दिस इज़ अ चाइनीज़ क्विजीन रेस्टोरेंट. टोमेटो केचप नो ठीक है चलेगा. रोसिस एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर हेडेड टुवर्ड्स शॉनब्रुन पैलेस. शॉनब्रुन का मतलब है ब्यूटीफुल स्प्रिंग इन जर्मन. एंड ये म्यूज़ियम ऑस्ट्रिया या वियना में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम्स में माना जाता है या पैलेसेस में माना जाता है. ये समर पैलेस हुआ करता था या समर रेजिडेंस हुआ करता था यहाँ के रूलर्स के टाइम पे. And it has been a major tourist attraction since mid 1950s. एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ की ओपनिंग टाइम, वेबसाइट, हाउ टू बुक द टिकट्स एंड व्हाट आर द प्राइजेस एज फॉर एडल्ट्स एंड फॉर चिल्ड्रन,
both in euro and in Indian INR. ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. ये शॉनब्रन पैलेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, विच इज़ द गार्डन. बहुत ही सुंदर है. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द पैलेस. ये देखिए, ये है एलिजाबेथ की गाउन तब के ज़माने की, जो पेरिस से मंगवाई गई थी. लुक एट द शैंडलियर, ब्यूटिफुल. ज्वेलरी तो लाजवाब है ही, रूबीज एंड डायमंड्स. ये सारी रेप्लिकाज हैं जो अभी डिस्प्ले में रखी गई हैं. Look at the paintings. Beautiful. So Vienna में mostly सारे palaces, including this palace, which is the Schönbrunn Palace, is of Baroque style palace, which has 1441 rooms. एक एक रूम नायाब तरीके से बनाया गया है, चाहे वो नक्काशी क्यों ना हो, चाहे उसकी वॉल पेंटिंग्स, कर्टन्स, interiors, furnitures. I mean, it's breathtaking, beautiful. So let's have a quick tour. This was the small salon. This was Elizabeth's bedroom and drawing room. बताइए, गजब की खूबसूरती. एलिजाबेथ की ड्रेसिंग एंड एक्सरसाइज रूम. And this was Elizabeth's bathroom.
and this is the dining place for their family. And we are entering to the most favorite part, my most favorite part of the entire palace. Look at the ceiling. मैंने इतना खूबसूरत सीलिंग पेंटिंग आज तक नहीं देखा. ट्रस्ट मी, it is beautiful. It is beyond words could describe. हाँ, इस पैलेस में काफ़ी मूवीज़ या सीरीज़ शूट हुई हैं, जैसे कि 1950s में द लिविंग डेलाइट्स जेम्स बॉन्ड की मूवी, या जैकी चैन की आर्मर ऑफ गॉड. शाम का वक्त है और अभी हम लोग आ गए हैं सीसीज म्यूज़ियम. यहाँ इसकी खूबसूरती और रिच कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए. There you go, my mommy. Hi. I have mentioned all the required details कि कितने टाइम में इसको एक्सप्लोर करना होता है, कितना प्राइस होता है इसके टिकट्स का, एंड द वेबसाइट इंफॉर्मेशन एज वेल. सो इसकी ओपनिंग कब से कब तक की होती है, ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो आई हैव मैंशनड. एंड जहाँ तक की बात होती है कि सीसीज म्यूज़ियम की, ये शॉनब्रन के कंपैरिजन में इतना बड़ा पैलेस तो नहीं है, बट इसकी खूबसूरती नायाब है, बहुत ही सुंदर है. यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 24 इम्पॉर्टेंट रूम्स हैं और यहाँ पे एम्परर फ्रांस जोसेफ एंड उनकी वाइफ एलिजाबेथ रहा करती थी. ये which comprises of the studies, residential suites and reception rooms. So all were beautifully furnished. So this was one of the carriages. ये replica है उनके टाइम के carriages का. देखिए वहाँ पे animated windows भी है. Look at the ceiling. Beautiful, right? अब वक्त आ गया है कि हम वियना में कुछ लोकल शॉपिंग कर लें. उसके लिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ के फेमस नैश मार्केट में. और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे 120 प्लस शॉप्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कि वियतनामीज़, ओरिएंटल, इटालियन, लेबनीज़, टर्किश एक्सेट्रा. यहाँ पे मोरलेस बजट फ्रेंडली एंड सोवीनियर टाइप की चीज़ें अगर आपको घर पे लेके जानी हैं तो आप लेके जा सकते हो. बाकी अगर आपको कोई ब्रांडेड या लग्जरियस ब्रांड्स की शॉप्स चाहिए तो वो आपको प्रॉपर सिटी में मिल जाएंगी. वी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर द स्टफ्स, लोकल चीज़ें जैसे आप देख सकते हो चीज़ या ऑलिव्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में नहीं मिलती हैं. तो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग दैट.
is the fish shop. शाम काफ़ी हो चुकी है. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. हमने काफ़ी एक्सप्लोर भी कर लिया इस मार्केट को. अभी हम लोग क्रिसमस मार्केट की तरफ जाएंगे. चलिए. What I see right now in front of me is straight out of my childhood dreams and stories. Beautiful. People who are planning to visit Europe, I would always say that, please visit Vienna, and especially during Christmas if you can. It is beautiful. And by the way, 2024 Vienna is being considered the most livable city in the world as per Economist Intelligence Unit. So I see the reason. So this was the place that we were being put up. This is one of the smart apartments that we had booked for our stay in Vienna. Hi! Let me give you a quick tour. So this is the kitchen come a very compact space for dining. This is the cupboard. These are the two washrooms, and towards the right hand side this is the bedroom with two beds, and here we go, this is the balcony with a beautiful view. एंड अभी हम लोग निकल चुके हैं OBB रेलवे स्टेशन के लिए, एंड वहाँ से हम लोग जाएंगे इंसब्रक. टिल देन प्लीज टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टेक केयर. बाय.